टू लीड अ चाइल्ड, बच्चों को लीड करने का नाम है पेडागोजी। सी द स्टूडेंट इज इन सेंटर। पेडागोजी का जो कंप्लीट प्रोसेस है कंस्ट्रक्टिविज्म में एंड टेक्नोलॉजी। Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Sorry for the delay. There are usually technical issues which we try to overcome. So let's start. So as you know, I am Waqar Ali Abbasi from Idea Public School Administration and as well as the teacher to enhance the skills of our teachers, pedagogical skills. So first of all, training. It's about pedagogy. Has anyone heard this word? Pedagogy. Yes, sir. Okay, you have the papers with you. You have to write a single definition, single line definition of what you think in your mind is pedagogy. And to write a definition of anything, you have to do two things as we teach our students. One is where it is originated and another is function. So please write it in its origin and its function. What are the function of pedagogies? Okay, please stop. Now exchange papers with your neighbors. Ma'am, I'll just look at yours now. Now read each other's definitions, please, silently. Let's go ahead with the definition. This particular training is about pedagogy. Let's try to understand what pedagogy is and why are you learning it. A bit of discussion with you, please. Method of teaching is called pedagogy. Very good. Yes, all are right. Let's go forward. Definition is the method and practice of teaching is called pedagogy. It's a broad term in which teachers learn to understand how to teach a particular child or how to teach number of children that you have at your disposal. Importance of pedagogy. Understanding pedagogy helps teacher adopt the methods to improve student learning outcome. Learning outcome को improve करने के लिए the steps that a teacher takes, that is called pedagogy. Not just ratta, not just rote learning, but holistic learning in which students are becoming smarter. There are multiple learning theories about pedagogy in which you first of all have to understand the psyche and the level of students you are dealing with, and then you will be employing different methods that are suitable to those students. Learning theories, different approaches to help explain how students learn best. एक चीज को पढ़ाने के एक तरीके से अगर आप देख लेंगे, ये दो तीन बच्चे ऐसे हैं जिनको ये तरीका समझ नहीं आ रहा, then you will opt for another method. And अगर वो मेथड दो तीन और बच्चों को समझ नहीं आ रहा, तो then you will opt another method. You will opt multiple, एक blend बनाएंगे आप लोग जिससे सारे बच्चों की लर्निंग हो जाएगी. Okay, so there are different learning approaches जिससे बच्चे कुछ विजुअली चीजें देखते हैं तो उनको समझ आता है, कुछ रीडिंग करते हैं समझ आता है, कुछ सुनते हैं तो समझ आता है. So teacher has to be pedagogical in order for a good lesson plan उसको बनाने के लिए, ताकि सारे बच्चों की learning एक holistic हो सके. Some are monkeys, some are fish. Monkeys can climb on trees, fish can swim in water. So teacher has to employ all the methods जो monkey के लिए भी सही हो और fish के लिए भी ठीक हो, suitable हो. So that is the holistic term of pedagogy. Pedagogical skills, बच्चों को पढ़ाने के skills, लेकिन उनके लेवल पे जाके उनकी सोच के मुताबिक ऐसा लेसन बनाना ताकि सारे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बहुत आसान से हो जाए. That is the main holistic definition of pedagogy. Etymology means when you break down word into a smaller part. Pedagogy is derived from Greek word pedos. बच्चों के डॉक्टर को क्या कहते हैं, by the way? बच्चों को चेक करते हैं, pediatrician. That's peds, pedos, same word, derived from the Greek word pedos. And there is another word agogos. Now these are two words that are combining, making pedagogy. Pedos का मतलब है बच्चे, okay, kids, child. And agogos means which to lead. बच्चों को lead करने का नाम है pedagogy. To lead a child. तो that is the definition. Pedagogy is art. It's an art. 20-30 बच्चे आपकी क्लास में बैठे हैं. They are asking you questions differently. मैम ये इधर से शोर आ रहा है, उधर से शोर आ रहा है. You will be exhausted. So you have to know how to handle those children. It's an art. Pedagogy is an art, and also it's in science. If you handle it in a logical way and in using scientific techniques to create and develop this art, it constitutes both. So it's a science and art of teaching. Study of how educators teach students. ये pedagogy जो है वो स्टडी है और आर्ट है, बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं एजुकेटर्स उसको समझने. इट इंक्लूड्स टीचिंग मेथड्स, इसमें टीचिंग मेथड्स भी आ जाते हैं, टीचिंग टेक्निक्स भी आ जाती हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज भी आ जाती हैं, एंड लर्निंग एक्टिविटीज एंड असेसमेंट्स. असेसमेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ पेडागोजी. आपने जो बच्चों को पढ़ाया, बच्चों ने कितना समझा. एक एग्जाम्स आपके जो एक जनरल एग्जाम्स होते हैं, दैट इज अनदर थिंग, बट वन असेसमेंट इज डन पर्सनली बाय टीचर एज वेल in order to gauge, in order to measure where the child stands at that time. So that is
also an assessment. So let's see here pedagogy का जो complete process है, everything revolves around student. See, the student is in center. Now the teacher is for student. The content that she or he is teaching, it's for student. The methods that are being applied in order to convey that content is also projected to the student, as well as the learning materials that you create. All these fours, content, learning methods, learning materials, as well as teachers, all are centric to students. It means student is the hero of this skill. हमें बच्चों को सामने सेंटर पे रख ताकि उनकी लर्निंग हो सके. जब आप उनको लर्निंग के सेंटर पे बिठाएंगे तो इंशाल्लाह you will see there is a huge learning going on. Now, how can we gauge? हम कैसे समझ सकते हैं कि आप एक पेडागॉग हैं या एक स्किल्ड पेडागॉग हैं? तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो खासियतें हैं एक स्किल्ड पेडागॉग की क्या क्या होती हैं? एक तो उनकी क्लास इंटरेस्टिंग होती है. इंटरेस्टिंग में मतलब वो बच्चे आपके डरते नहीं है, खामोश से नहीं बैठे हैं, आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, आपको इंटरैक्टिव नहीं रखा हुआ, बोरिंग है क्लास. बच्चे जो है दे आर यॉर्निंग, आप जो उनसे पूछ रहे हैं उसका जवाब नहीं दे रहे. अनरेस्पॉन्सिवनेस इन द क्लास. इंटरेस्टिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट फॉर मैक्सिमम आउटपुट. उससे मैक्सिमम आउटपुट नहीं आएगा. जो आपकी क्लास बोरिंग होगी, आप बोलोगे हाँ 40 मिनट्स गुजर गए, ओके वेल एंड गुड, बच्चों ने भी नहीं समझा, बच्चे भी दुआ कर रहे होंगे प्लीज ये टीचर जाए. सो इट मींस यू आर नॉट अ पेडागॉग. स्किल्ड पेडागॉग तो बिल्कुल भी आप नहीं. अगर आपकी क्लास इंटरेस्टिंग है और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं एंड दे आर रेस्पॉन्डिंग एंड दे आर आल्सो लर्निंग, दैट मींस यू आर स्किल्ड पेडागॉग. सेकंड पॉइंट, इट प्रोवाइड्स मींस फॉर क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग. बच्चों को हमने जो प्रोसेस है बेसिकली पेडागॉग का वो ये है कि बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग कितनी है. क्रिटिकल थिंकिंग में मतलब आज मैं आपसे एक एग्जांपल देता हूं. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. एक बच्चे को मैंने बताया बेटा ये जो हम पोएम पढ़ रहे हैं इसके जो पोएट हैं 1998 में उनकी डेथ हुई है. इट वाज रिटन इन अबाउट द पोएट सेक्शन एंड इट वाज आल्सो रिटन दैट ही डाइड एट द एज ऑफ 81. सो आई आस्क्ड देम व्हाट इज द बर्थ ईयर ऑफ दैट पोएट. सो सम स्टूडेंट्स वर थिंकिंग सर इसमें तो लिखा ही नहीं हुआ. ओके, इट मींस देयर क्रिटिकल skills are not developed. But some students say, sir, this 81 years old and he died in 1998, so we will minus the 81 from 1998. He was born in 1927. This is critical thinking, logical thinking. When you connect the dots, your students are able to connect the dots. So if your students are able to connect the dots, that means you are a skilled pedagogue. You are trying different strategies. I am an English teacher. It does not mean कि मैं बस मैथ को छूंगा भी नहीं. I can also teach them percentages. I can also teach them how to divisions कैसे कर सकते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, ताकि उनकी जो इंग्लिश वाली स्किल्स हैं, जो वो कॉन्सेप्ट समझते हैं इंग्लिश में, जो एवरेज का पढ़ रहे हैं और इस तरीके के वर्ड्स पढ़ रहे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो जाए. यू हैव टू स्विच बिटवीन मल्टीपल सब्जेक्ट्स एज वेल. सो अगर आप पेडागॉग स्किल्स हैं तो आपकी जो क्लास है वो क्रिटिकल थिंकिंग में जाएगी. अदरवाइज रोट लर्निंग ज्यादा हो. प्रोवाइड स्टूडेंट सेंटर्ड क्लास वेयर डिसिप्लिन इज इंट्रिंसिक. इंट्रिंसिक का मतलब है अंदर से आना. आपकी क्लास ऐसी है जैसे वो खुद अंदर से डिसिप्लिन लेके आ रहे हैं, रास्ते और तरीके नहीं ढूंढ रहे. दे आर नॉट ट्राइंग टू फाइंड द टैक्टिक्स इन ऑर्डर टू डिस्टर्ब एंड सैबोटाज द क्लास. वो अंदर से डिसिप्लिन है. थोड़ा बहुत मस्ती मजाक, वेल एंड गुड, फिर खामोशी से लेसन की तरफ. अगर आप पेडागॉग हैं अच्छे तो ये सारी चीजें आपकी क्लासरूम में होंगी. सो मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ. आपकी क्लास इंटरेस्टिंग होगी, आपकी क्लास में क्रिटिकल थिंकिंग होगी एंड आपकी क्लास डिसिप्लिन होगी. अंदर से वो खुद चाहेंगे कि हम सीखें कुछ सर से, मैम से, फिर आप एक पेडागॉग स्किल्स आपके अंदर आएंगे. नाउ देयर आर 4 मेन थियरीज फॉर पेडागॉजी. ऑल क्लिक और 4. वन इज बिहेवियर लर्निंग थियरी. कोड लर्निंग थियरी. बच्चा कैसे सीखता है, या बच्चा नहीं हम सब कैसे सीखते हैं. हाउ डू वी लर्न? फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न थ्रू बिहेवियरिज्म. सेकंड इज कॉग्निटिविज्म. थर्ड इज कंस्ट्रक्टिविज्म. फोर्थ इज कनेक्टिविज्म. बिहेवियरिज्म जैसे आपको पता है कि बिहेवियर से सिखाना, आप कंडीशनिंग करते हैं और अगर कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो फिर आप उसको रिवॉर्ड भी देते हैं. दीज आर बोथ बिहेवियर बेसिकली. और इसमें बिहेवियरिज्म में यही चीजें हैं. लर्निंग एज बिहेवियर चेंज. आप उनको प्रैक्टिस करवा के कोई बिहेवियर की उनको सिखा दें. आई nowadays give tracing work. Students try to avoid the tracing work because it's lengthy, it keeps them occupied, it hurts their hands while writing and it's quite difficult for them. So this is the behaviorism. What I want to teach them, I want to enforce it through negative reinforcement and positive reinforcement मतलब award, अच्छा काम मतलब उसका इनाम, और negative reinforcement मतलब छोटी सी हल्की सी constructive punishment. ठीक है, corporal punishment की बात नहीं कर रहा मैं, constructive punishment की बात कर रहा हूं. cognitivism मतलब दिमाग कैसे काम करता है. cognition, mental working of your brain. cognitivism से दिमाग की जो वर्किंग होती है, इंसान कैसे सीखता है, उसका माइंड
कैसे काम करता है, उसके बिहाफ पे लर्निंग होती है। फॉर इंस्टेंस लर्निंग एज मेंटल प्रोसेस। फॉर इंस्टेंस अगर मुझे एक लंबी लिस्ट याद करवानी है, या अगर मैं चाह रहा हूं कि मैथमेटिकल की जो सीरीज ऑफ ऑपरेशंस हैं वो मुझे करवानी है बच्चों को, तो वो कैसे करवाऊंगा? कोई टॉपिक, कोई ऐसा नाम आपको याद आ रहा हो? मैथमेटिक्स टीचर्स, वेरी गुड एग्जांपल, दैट इज 100% ट्रू। बोर्ड मास क्या चीज है? बोर्ड मास, ब्रैकेट्स, ऑर्डर्स एंड डिवीजन, देन देयर विल बी सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। सो नाउ वी नो वर्ड बोर्ड मास। बोर्ड मास को हम अलग से उसकी शॉर्ट एब्रीविएशन करेंगे एंड देन वी विल बी अंडरस्टैंडिंग कि हमें कैसे जाना है। उसको याद करने की जरूरत नहीं है, दिमाग इतना लगाने की जरूरत, ठीक है? दैट इज निमोनिक को कहते हैं, निमोनिक्स। इट इज अ मेथड। दीज आर द न्यूमेनिक्स ऑफ हाउ टू रिमेंबर सर्टेन वर्ड्स। अब बच्चों को नहीं बोलेंगे कि बेटा याद करो, क्योंकि याद करने से उनके दिमाग में आएगा प्रेशर। यू विल हैव टू मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर देम, वो मेक इट गेम फॉर देम। अब बोर्ड मास जब आएगा तो वो खुद ब खुद इंशाल्लाह कर लेंगे। अच्छा पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ब्रैकेट कौन सी है इसमें? अच्छा ये ब्रैकेट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व दिस। मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व करनी है, प्लस एंड माइनस, सो इट विल बी इजी लर्निंग। दूसरा इसमें तरीका है मेंटल मैपिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग फॉर जनरेशन ऑफ आइडियाज। बच्चों को आइडियाज कैसे आएंगे? एक सर्किल लिखते हैं, सर्किल बनाते हैं, सेंटर में उसका टॉपिक होता है, देन व्हाटएवर थिंग्स कम्स इन देयर माइंड दे जस्ट ड्रॉ द लाइंस और वो आइडियाज लिखते जाते हैं। उसके बाद दे हैव टू गिव सीरीज। नाउ दिस इज आल्सो हाउ दे थिंक। अब आइडियाज जनरेट करने के लिए जब भी वो सोचेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग पहले करेंगे। सो दिस इज कॉग्निशन। दिमाग कैसे काम करता है? दिमाग को जो है एक डायरेक्शन दी जाती है और उसको एक सिस्टम दिया जाता है ताकि उस सिस्टम पे चीजें बिल्ड हो। दैट्स कॉल्ड कॉग्निटिविज्म एंड टीचर्स नो हाउ टू पुट दीस थिंग्स एट वर्क। थर्ड थिंग इज कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म जैसे नाम है, कंस्ट्रक्ट करना चीजों को, हैंड्स ऑन एक्टिविटी के साथ लर्निंग करने को कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। यदि अमिश कैन टेल मी व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट जो अभी हमने किया हो? आपने कोई कंस्ट्रक्टिविज्म का प्रोजेक्ट किया अभी रिसेंटली? वेरी गुड, यस, इको ब्रिक्स। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, प्लास्टिक जो वेस्ट है उसको रिसाइकिल करके एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाना था। ये एक प्रोजेक्ट हमने किया था, मिस अमिश ने इसको लीड किया था। इट वाज अ कंपटीशन सारे स्कूल्स के बीच में। हमारे स्कूल को अप्रिशिएशन दी गई थी उस कंपटीशन के उसमें, बिकॉज वी वर सम देयर विद द प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट। बाकी सारे जो है वो आर्टिस्टिक उसको मोड लेके आए थे, हम एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बना के गए थे। वी मेड कंस्ट्रक्शन ब्रिक बनाई थी, सीमेंट को और प्लास्टिक को मेल्ट करके एक मिक्सचर बनाया था जो जिसकी जो हार्डनेस थी इट वाज लाइक अ सीमेंट। तो हमने जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के ब्रिक्स बना ली थी। तो इट वाज अ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट। अब उससे बच्चे सीख गए कि अच्छा प्लास्टिक को मेल्ट भी किया जाता है, उसको हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल में इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मोल्ड भी बन सकता है। और प्लास्टिक वेस्ट जो ज्यादा घूम रही है मार्केट में, चीप रिसोर्सेज है, ये सारी जो लर्निंग किसके थ्रू हुई? कंस्ट्रक्टिविज्म, प्रोजेक्ट के थ्रू। जो आप बच्चों को प्रोजेक्ट देते हैं और वो बच्चे प्रोजेक्ट में इंक्लूड करके उसकी लर्निंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिविज्म मेथड ऑफ पेडागोजी। नेक्स्ट कनेक्टिविज्म। आजकल हम बहुत ये चीज अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव इंक्लूडेड इन आवर सिस्टम। हम पढ़ाई में बहुत है, कंपटीशन बहुत हो रहा है यहाँ पे। कंप्यूटर लैब जो हमें लग रहा है एक और बनानी पड़ेगी। कनेक्टिविज्म इज लर्निंग थ्रू टेक्नोलॉजी। ओके, व्हेन यू ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम गूगल, व्हेन यू ट्राई टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ChatGPT and whatever the tools of internet and social media are available at our hands, when you use them and teach students, that's called the connectivism. So मैंने उसका एक जनरली आपको दे दिया। अब आगे देखते हैं इसके थोड़ा सा की आइडियाज। बिहेवियरिज्म का की आइडियाज है लर्निंग occurs through reinforcement। आप reinforce करें, अच्छी चीज के लिए अच्छी रिवॉर्ड दें, बुरी चीज के लिए नेगेटिव reinforcement करें, बच्चा उस हिसाब से सीखता है। टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, डायरेक्ट इंटरवेंशन है, बच्चा बस सुनता है बैठ के। टीचर जो उसको बोलता है वैसे ही करना पड़ता है। एग्जाम्पल्स: rewarding students for correct answers और using positive reinforcement to encourage participation। आप करते हैं, कोई बच्चा जो है वो राइट आंसर देता है तो आप क्लैपिंग, बच्चा उससे सीखता है अच्छा मेरे लिए जो है वो अप्रिसिएशन हुई है, सो इट्स अ रीइंफोर्समेंट। एप्लीकेशन इन द क्लासरूम, बिहेवियर चार्ट्स जैसे मैं बनाता हूँ आजकल। होमवर्क जो बच्चा नहीं करता, फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट अ चार्ट। 7-8 चिल्ड्रन है, सबके नाम लिख लेता हूँ मैं। जो होमवर्क करके आता है उसको 10 मार्क्स, जो नहीं करके आता उसको 0 मार्क्स। एंड ऑल्सो ही हैज टू ट्रेस, sorry sir, I will do assignment 1 page both sides, and they have to do it in the break time. So this also improves their handwriting and this also cause a deterrence। क्या कहते हैं उनको, कोई नेगेटिव वर्डिंग्स नहीं, बड़े प्यार मोहब्बत से आप उनको बोल सकते हैं कि बेटा ये नहीं करके अच्छा ये करें। इसमें आप भी अपने रिलैक्स रहते हैं और एक बच्चा भी जो उसको लगता है कि अच्छा मैं ये नहीं तो ये चीज, एक डिटरेंस है यहाँ, ठीक है जी। सो दैट इज द एप्लीकेशन। स्ट्रक्चर्ड लेसन्स विद द क्लियर एक्सपेक्टेशंस। आपके पास ये स्ट्रक्चर्ड लेसन्स हैं, आपने इसमें देखना है, एक्सक्यूज मी सर, check this out. This is a टॉय बॉक्स स्टूडेंट बुकलेट। ये अभी हम प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को जब आपने चैप्टर पूरा करवा देना है, देन यू हैव टू मेक अ बुकलेट लाइक दिस वन।
ठीक है, इसको आप स्टडी करेंगी। इसमें सारे सेक्शन हैं, एक तो वोकेबलरी सेक्शन है, दूसरा इसमें है जनाब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ऐसी बुकलेट है कि बच्चे को ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, दे जस्ट हैव टू टिक या एक सिंगल लाइन आंसर करेंगे, उससे उनकी वोकेबलरी से उनके जो लेसन हैं जो इसमें हैं और उनकी कॉम्प्रीहेंशन सारे इसमें कवर्ड हो जाएंगे। आप इसको स्टडी करेंगे इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। नाउ दिस इज अ वेल स्ट्रक्चर्ड लेसन है ये, और बिहेवियरिज्म है। बच्चों को पता है कि जब हम चैप्टर पूरा कर लेंगे तो हमें ये वाली चीज दी जाएगी और इस चीज को हमने सॉल्व करना है और अपनी मर्जी से करना है। अब मैं बच्चों को आजकल ये चीज भी करवा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड बिहेवियर, जो मैंने आपको करवाया। जीरो रोट लर्निंग, ओनली कॉम्प्रीहेंशन, दिस इज वन मेथड। मैं उनको बोलता हूँ आपने जो है यू हैव टू रिपीट, व्हेन आई डू दिस यू हैव टू से जीरो, व्हेन आई डू दिस यू हैव टू से रोट, व्हेन आई डू दिस यू हैव टू से लर्निंग, व्हेन आई डू दिस you have to say only bigger, and then when I put my hands like this you have to say comprehend. Okay, now let's repeat, let's do it one time. Zero, road, learning, only comprehension. Very good. So this is ये वाले तरीका बिहेवियरिज्म में आता है। बच्चों को ये चीज करेंगे। जिंगल्स उस दिन जैसे सर जो है काफी माशाल्लाह इम्प्रेस भी हो गए जिंगल से, तो ये वाली जगह चीजें, इससे जिंगल्स से बच्चे सीखते हैं, समझते हैं, और रिपीट बिहेवियर बार बार रिपीट हो रहा होता है। तो ये कंपनीज जो है वो भी हमें बिहेवियर कर रही होती है। डॉलेंस लिया तो बात बनी, क्योंकि डॉलेंस रिलायबल है। अब ये चीज हमारी जिंगल में बैठ गई, हमारी सोच में बैठ गई और हमारे कॉन्शियसनेस में बैठ गई ये वाली। जब हम डॉलेंस को सुनेंगे तो वी विल बी एसोसिएटिंग इट विद दैट पर्टिकुलर रिलायबिलिटी या जो उनकी जिंगल है। सो यू कैन टीच स्टूडेंट्स बिहेवियर चेंज कर सकते हैं आप जिंगल्स के थ्रू। ये रीइंफोर्समेंट्स हैं, अच्छी अच्छी चीजों के लिए अच्छी अच्छी रिवॉर्ड्स और अच्छी अच्छी बिहेवियर्स उनको सिखाएं जो बच्चे एंजॉय करें। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। इंशाल्लाह इसको हम स्टडी करेंगे, आपके पास ही है ये हैंड आउट, आप कर लीजिएगा। सर नेक्स्ट, कॉग्निटिविज्म, थिंकिंग माइंड फोकसेस ऑन हाउ स्टूडेंट्स प्रोसेस, स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन। बच्चे कैसे समझते हैं इंफॉर्मेशन को, बच्चे अपने दिमाग से उसको रिट्रीव कैसे करते हैं और उसको स्टोर कैसे करते हैं अपने दिमाग में। इनकरेजेस अंडरस्टैंडिंग ओवर मेमोराइजेशन, ये समझने के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, मेमोराइजेशन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाली चीज अगर मैं बोल दूं और विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज इट्स जस्ट अ मेमोराइजेशन, बट आई नो कुल हु अल्लाहु अहद, कुल मींस से अल्लाह इज वन। ओके, सो दीज आर द अंडरस्टैंडिंग, सो दैट इज कॉग्निशन। हम दिमाग को समझाते हैं कि बेटा ये चीज है, इसको ऐसे समझना है। उसके तरीकेकार हैं वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, अभी भी इसमें आएंगे। एग्जांपल्स, यूजिंग माइंड मैप्स, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स। अच्छा, माइंड मैप्स अगर मैं आपको बोलूं इस पंखे के ऊपर आपने ऐसे लिखना है, माइंड मैपिंग करेंगे भाई, कहां से शुरुआत है, फिर कौन कौन से स्टेजेस में 1 2 3 4 5 को मैपिंग करवाएं। ये बच्चे आइडिया जनरेट करने। अच्छा सर ये फैक्ट्री में पैदा होता है। अच्छा नहीं सर, इससे पहले इसका रॉ मटेरियल कॉपर, स्टील, ये सारी चीज़ें जमा होती हैं, फिर वो आती हैं फैक्ट्री में, फिर फैक्ट्री जो है उधर मुख्तलिफ फैक्ट्रीज के एक सेक्शंस बनते हैं, वो अलग अलग उनके जो है उसके औजार बनते होंगे। देन देयर इज असेंबली, असेंबली में वो जगह कनेक्ट होती है, फिर उसकी पैकेजिंग है, उसके बाद जो है उसको डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर दुकानों पे आते हैं, फिर घरों में आते हैं, घरों में लगते हैं, फिर खराब हो जाते हैं। देन इट्स अ कंप्लीट साइकिल। नाउ दिस इज अ मेंटल मैपिंग, जो कॉग्निटिविज्म की थियरी में आता है कि आप दिमाग काम कैसे करता है, अंडरस्टैंडिंग कैसे है, दिमाग कॉग्निशन कैसे काम कर रही है। सर एग्जाम्पल्स या applications, teaching strategies such as questioning techniques and mnemonics. Mnemonics is board mass. Questioning technique, who, where, why, when, what. When there is a topic in front of you, you have to condition your children that you have to ask these 4 questions in a series. First of all, understand who is asking this question, what is he asking, why is he asking. Okay, these are the cognition method. आपके दिमाग का जो काम है वैसे ही है। अगर आप इन functions को समझ जाएंगे then it इंशाल्लाह इसकी application, इसको use कैसे करना है क्लास में, वो आपके लिए इजी हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिविज्म, स्टूडेंट्स बिल्ड नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन, एनकरेजेस एक्टिव लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपने एक प्लास्टिक को की ब्रिक कैसे बनानी है, इट्स अ प्रॉब्लम, तो बेटा ये लो ब्रिक है, ये सीमेंट है, और 1-2 बार उनको एक प्रोसेस बता दें। देन लेट देम एक्सपीरियंस, एक्सरसाइज, प्रैक्टिस, एक्सपेरिमेंट, वो सब चीजें करके, अच्छा मैम ये हम सीमेंट में हम इतना पानी डालते हैं फिर ये जल्दी हार्ड हो जाता है, ओके सही है। अच्छा प्लास्टिक में हम ज्यादा हो जाती है, इसको जल्दी गलाना है, ओके सही है। अच्छा मैम प्लास्टिक के जो कंटेनर है वो स्टील वाला होना चाहिए। मैम दीज वर द पॉइंट्स दैट यू लर्न, सो दैट्स हाउ वी लर्न थ्रू कंस्ट्रक्टिविज्म, बाय एंगेजिंग इन हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। एग्जांपल्स, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, एग्जैक्टली, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, स्टूडेंट्स एक्सप्लोर और कॉन्सेप्ट्स। एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू सीखने को कहते हैं
constructivism. You construct things and learn things. Next is connectivism. Connectivism means connectivity with the internet. Students build knowledge through experience. Learning happens through digital and social networks. Simple. Google, YouTube, Facebook, TikTok, ChatGPT. The ability to find and use information is crucial. अब बच्चे आजकल फोन इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये वाले कंप्यूटर उनको इस्तेमाल करना मुश्किल हो रहा है. They don't even know where the mouse goes, what is left click, what is right click, और इसको हम कहाँ पे इंफॉर्मेशन को स्टोर करें, हम कहाँ पे अपना ये फाइल बनाएं, etc. तो ये प्रॉब्लम है बच्चों के लिए. So when you teach them to extract the information इंटरनेट से, ChatGPT से, आप काफी टाइम पहले हम एक एक्सरसाइज कर चुके हैं कि ChatGPT से आप कैसे वो बनाएंगे, ये Montessori टीचर्स नो. So in order to understand या उसको समझ एक्सट्रैक्ट करना इंफॉर्मेशन, that's the part of the pedagogue that is using connectivism as the learning. Examples, ऑनलाइन रिसर्च प्रोजेक्ट. हैदराबाद में अच्छे रेस्टोरेंट्स कहाँ हैं भाई, ऑनलाइन रिसर्च करके आओ. वो जाएंगे गूगल मैप्स पे, अच्छा रेस्टोरेंट्स का नाम लिखेंगे या फिर फूड पांडा को सर्च करेंगे. ऑनलाइन रिसर्च प्रोजेक्ट ये वाली चीज आ गई. यूजिंग सोशल मीडिया फॉर एजुकेशनल कोलैबोरेशन. जैसे अभी मैं रिसेंटली इंटरनेशनल बैकलॉरेट की ट्रेनिंग में गया था. आई वेंट थ्रू दिस सोशल मीडिया. आई वाज इनवाइटेड एंड देन आई वाज रजिस्टर्ड, देन I did all the process and I was called there. It was an educational collaboration. वो एक तरीक़ेकार है उनका पढ़ाने का. That depends on no assessment, कोई उसमें नहीं है. Traditional examination नहीं है. That is something different style of teaching. So connectivism, we connect through internet. So application, integrating technology, Google Classroom, videos, online quizzes आप लोग कर रहे हैं. No need to understand इसमें ज़्यादा है. आजकल देखें सर भी जो है वीडियो दिखा रहे हैं और मैम अमिश जो है वो वीडियो दिखा रही हैं, मैम राबिया जो है वो वीडियो दिखा रहे हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन. और फिर आप खुद जो है वो आर्ट को उस दिन आपने ड्रॉ करवाया था वीडियो दिखा के. सो दैट्स हाउ चिल्ड्रन आर लर्निंग नाउअडेज. दे यूज मल्टीमीडिया, विजुअल ज्यादा है आजकल के बच्चे. ठीक है. Encouraging students to explore multiple sources of information. सिर्फ बुक ही नहीं है, YouTube पे जाओ और जो चीज आपको मिले ऑथेंटिक आपको जो नजर आए वो भी आप लिख के आ सकते हैं अगर लॉजिकली ठीक है. So that's how you use connectivism. Now this is done. So these are the four main theories. इस वक्त हम जो है इन्हीं को ही कवर करेंगे. सर हाउ कैन यू अप्लाई ऑल these फोर प्रैक्टिकल पेडागोजी, ये आप कैसे क्लासरूम में कर सकते हैं. कंबाइन थियरीज फॉर बैलेंस अप्रोच. आप कभी कभी ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि एक ही अप्रोच पे आप चले. कभी आप बिहेवियर अप्रोच करेंगे, कभी आप कॉग्निटिविज्म अप्रोच करेंगे, कभी आप कंस्ट्रक्टिविज्म करेंगे और कभी आप कनेक्टिविज्म करेंगे. आजकल हमारा फोकस ज्यादा कनेक्टिविज्म में है बिकॉज कनेक्टिविज्म में ऑलरेडी बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं. दे ट्राई टू इंजॉय द कंप्यूटर्स और उनकी जो दुनिया है, जो अगर उनको आ रहा होगा, रिजल्ट आ रहे होंगे तो दे इंजॉय. लेकिन बिहेवियर भी हमें बार बार इम्पोज करना पड़ता है और निमोनिक्स कंस्ट्रक्टिविज्म भी इम्पोज करनी पड़ती है, कभी कभी प्रोजेक्ट भी देना पड़ता है. ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड. सो बैलेंस अप्रोच शुड बी देयर. यू हैव टू जज द लेसन. उसके हिसाब से आपने जो है वो उसकी थियरी देनी है. यूज अ मिक्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, स्कैफोल्डिंग, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज एंड टेक्नोलॉजी. स्कैफोल्डिंग कोई बता सकता है इस टर्म के बारे में? ओके, बिल्डिंग कभी बनते हुए देखी आपने? देखे आपने कभी पाइप्स होते हैं, स्टील के पाइप्स भी होते हैं और दैट इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग. जब आप बड़ी चीज को बनाने के लिए पहले उसके स्टेप्स बनाते हैं और उसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करते हैं ताकि बड़ी चीज उसके ऊपर बैठे. दैट इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग. स्कैफोल्डिंग बच्चों का अगर कोई बड़ा कॉन्सेप्ट है तो पहले उनके जो 4-5 छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो आप पहले अलग अलग बयान करें और फिर जो है वो उसका मेन कॉन्सेप्ट दें. जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं प्रोनाउंसिएशन पढ़ाना चाह रहा हूँ तो मैं फोनिक्स पे आऊंगा पहले, अ ब क स, एंड देन देयर इज फोनिक्स पढ़ाने के बाद मिक्सिंग ऑफ टू डायग्राफ्स जिसको हम कहते हैं, और इस तरीके की. अब ये 4-5 चीजें जब मिल जाएंगी देन प्रोनाउंसिएशन आगे खुद ब खुद कर सकते हैं. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, बच्चों को बड़े कॉन्सेप्ट डायरेक्ट ना दें तो उनको स्कैफोल्डिंग करके छोटे छोटे पीसेस स्टेजेस करके देने हैं आप. दैट्स कॉल्ड स्कैफोल्डिंग. बाकी रीइंफोर्समेंट बिहेवियरिज्म में, स्कैफोल्डिंग कॉग्निटिविज्म में, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज कंस्ट्रक्टिविज्म में, एंड टेक्नोलॉजी कनेक्टिविज्म में. एडॉप्ट मेथड्स बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स नीड. अगर बच्चे को कंप्यूटर में ज्यादा इंटरेस्ट है, बच्चों को लिखना ज्यादा है, बच्चे आर्ट ज्यादा अच्छा करते हैं, यू हैव टू जज एज अ टीचर. यू आर जजेस कि बच्चे किस तरीके से पढ़ेंगे. आप एक प्रोसेस, एक मेथड सबके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते. यू हैव टू जज एंड यू हैव टू जज अकॉर्डिंग टू द लेसन. एंगेज स्टूडेंट्स विद इंटरैक्टिव एक्टिविटीज. सो राइट नाउ आई विल डिसकंटिन्यू my discussion. I will ask ma'am continue because she has some activities. Ma'am, from here you will join. So we will learn some more about these theories, and right now whatever the sir has explained you are just listening. Okay, now you will do hands on. So for this, first of all we will move to the class 7. Okay, I will continue my further hands on activities over there, and then in class 1 we will go there, and then we will come back here. I am not your, I'm not a principal, I'm just your mentor and you are student. Okay, we will behave like so. We will get up and we will go to class 7.